Okay guys, so in this session we are going to cover what is interface and what is the use of interface in our Java application. Okay, and what is diamond problem in Java and how to resolve it, and after that we will try to complete difference between extends and implements keyword. Okay, so let's start with the interface. So I would tell you guys here, with the help of interface guys we can achieve the, you know, 100% abstraction interface. Okay, we can achieve 100% abstraction, means 100% total abstraction. Also we can achieve multiple inheritance. We can 100% abstraction in Java applications, remember. Okay, and multiple inheritance, multiple inheritance we can achieve. Okay, so abstractions, you know that if you talk about pick up the meaningful information, we are hiding the detail and just picking up the meaningful information whichever we require. Okay, so let's say guys, we have a, you know, one room. Okay, one house you can say, and inside the house we have a, so many things. So if you want to, you know, just show to the client, if you want to, you know, open the house and so only if you want to show some small information, some, you know, specific things to the client, so instead of, you know, open complete house, we will open one window. Okay, and through that window you can, you know, you can see and you can have a look on the thing which you require. Okay, so basically I would like to say here के इंटरफेस के द्वारा गाइस हम हाइडिंग द डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही पिक करना है. ओके, और आई वांट टू वर्क ओनली फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. ओके, सो ओनली दैट इंफॉर्मेशन आई विल चूज. ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको. तो गाइस मेरे प्रोजेक्ट में मेरी क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट वाला जो है, जो मान के चलो एक माइक्रो सर्विस है, वो मेरी सर्विस से मेरी क्लास के कुछ मेथड्स का यूज़ करना चाहती है. तो गाइस अदर एक तो एक तरीका है कि मैं अपनी क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दूं. ओके, so if suppose class having the 100 method but out of 100 he needs only 2 methods, तो ये मेरे को, ये आप देखोगे थोड़ा, यू नो, ये कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि आप इफ यू आर शेयरिंग योर, यू नो, ऑल इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट और आउटसाइड द पर्सन, तो इट माइट बी, यू नो, यू कैन से प्राइवेसी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है. तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग माई क्लास, okay, instead of sharing the complete information of my class to the client, what I will do, I will create one interface. Inside the interface I will put only that particular method, only those particular method which client might, you know, require to access, or client, you know, uh, asking to access. Okay, तो मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ 100 में से एक इंटरफेस बनाऊंगा जो क्लास के अंदर 100 मेथड्स हैं. तो आउट ऑफ 100 में से 2 मेथड्स में अपने एक इंटरफेस में रखूंगा, वो इंटरफेस में क्लाइंट को दे दूंगा और बोलूंगा कि भाई ओके, यू कैन, यू नो, यूटिलाइज दिस इंटरफेस, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस. ओके, एंड यू कैन कॉल दीज ऑल मेथड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस नेम, रिमेंबर. ओके, और वही इंटरफेस को हम अपने यहाँ पे क्लास से भी हम इसको बाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लास से उसको रिलेट कर देंगे हम अपने प्रोजेक्ट में. सो यार इंटरफेस इज काइंड ऑफ, यू नो, प्रोटोकॉल between two party, both party has to follow the same protocol.
Okay, it's kind of one contract. You are creating one contract, and that contract has to follow by the class author. Okay, तो ये आप कर सकते हैं। और तीसरा यूज इंटरफेस का है, वी कैन यूटिलाइज द इंटरफेस रेफरेंस। इंटरफेस रेफरेंस, तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी इंटरफेस की, इंटरफेस के फीचर्स को एक्सेस करने की, we don't need the interface object because we cannot create the interface object. Java is not allowing to create the interface object, remember. But of course you can utilize the interface reference variable name. Interface you can utilize as a reference, and that reference you can, you know, use to access the interface property. Okay, and that reference can point to their you know, point to their object, you know, whose uh, you can say pointed to their object uh, whose class is implementing the interface। ठीक है, तो तीन यूज हो गए पहले इंटरफेस का। 100% एब्स्ट्रैक्शन, आप उसमें यू नो जो भी आप मेथड रखोगे वो इनकम्प्लीट हो सकते हैं, एंड इफ एनी मेथड इन द इंटरफेस incomplete, not having the complete definition, then those methods must be implemented by their, you know, class who's implementing the interface, whose class is implementing the interface. This is a contract, you can say. Multiple inheritance you can achieve, and interface reference variable you can utilize to access the, you know, property of the interface। and इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। वी कैन नॉट क्रिएट द इंटरफेस ऑब्जेक्ट। इंटरफेस कैन नॉट बी लोडेड इनटू द मेमोरी। ठीक है, ये एक एडवांटेज, जस्ट फॉर रेफरिंग पर्पस यू कैन यूटिलाइज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाउ यू कैन यूज दिस इंटरफेस, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लास, बिटवीन द क्लास अगर कोई लाइक interface and class, how you can work? So let's say class, I have a one, you can say vehicle ले सकते हैं अपन, चलो vehicle, okay, not class vehicle, interface, let's say interface vehicle, programmatically now I'm going to define, okay। तो हमने यहाँ पर void start engine, okay, and void break, okay। तो ये है इंटरफेस, ये है। अब मैं अपनी एक क्लास बनाऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई। अब व्हीकल एक इंटरफेस हो गया, ध्यान रखना। अब जो जितने भी व्हीकल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने एप्लीकेशंस के अंदर, तो दोज व्हीकल क्लासेस मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर फॉर दीज मेथड्स, फॉर दीज इनकम्प्लीट मेथड। ठीक है, तो जैसे लेट्स से क्लास जैसे कार implements now you have to provide the both method implemented। this is the contract between the class and interface कि जो इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड होंगे, these are the remember implicit public abstract method। so इंटरफेस के अंदर whatever method you define, okay, which will be the implicit public abstract method। मतलब अगर आप नहीं लिखोगे यहाँ पर तो public abstract
लग जाएगा, ये कंपाइलर लगेगा। सेम थिंग, जितने भी मेथड होंगे वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, इम्प्लिसिट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जो भी अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल भी डिफाइन करते हो लेट्स से, तो बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लिसिट पब्लिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा। इसका मतलब ये जो भी आप वेरिएबल यहाँ डिफाइन करोगे वो इनिशियलाइज होगा और डिफॉल्ट वैल्यू इसमें जाएगी, जो भी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होगी, तो इसकी इंट की वैल्यू डिफॉल्ट है 0 जाएगी, एंड वंस यू इनिशियलाइज इट कैन नेवर चेंज बिकॉज इट इज फाइनल। ऑल वेरिएबल जो होंगे वो होंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। अब इंटरफेस के अंदर जेडीके 1.8 के बाद हम जेडीके जो जावा 1.8 था ना उससे हम डिफॉल्ट मेथड भी ऐड करने लगे हैं, बिकॉज इंटरफेस पहले बिफोर जेडीके 1.8 में डिफॉल्ट मेथड नहीं था इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिफॉल्ट मेथड भी, इंटरफेस कैन हैव डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट void let's say display डिफॉल्ट मेथड, जिसकी इस मेथड की आपको इम्प्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो डिफॉल्ट बिहेवियर यू कैन से ऑफ दिस इंटरफेस, so default behavior you can define inside the interface, okay, and you don't need to implement this default method, but incomplete method वो है वो जो आपको implement करने पड़ेंगे, remember, okay, so all incomplete method you have to implement in the class, okay। तो ये guys हमने देख लिया यहाँ पर, okay? अब डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट ये था कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ, मान लो मेरे पास डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इंटरफेस में, पहले क्या रहता था कि जो कुछ भी आप लिखते थे वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कार इज इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल, ठीक है, तो इसमें आपको आ, अभी स्टार्ट इंजन और ब्रेक दोनों इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ये था। लेकिन अभी कुछ ऐसे बिहेवियर में लिख सकता हूँ व्हीकल का, जैसे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मेरे को डिस्प्ले करना है व्हीकल, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट इन द क्लासेस, ओके, फोर्सफुली, ओके। नाउ these all put method has to implement, ये मेथड इम्प्लीमेंट होंगे, so I will tell you in the you know you can say in the uh, Java application, okay, so fine. So we have discussed about the interface. Now I will tell you how to implement in Java application. So let's start. So guys, here we have I created the interface. I will tell you how to create. Just you can say this is my package, new, just select the interface, give the interface name. So I just creating, as I told you, whatever method you write inside the interface, those methods will be the implicit public abstract methods of void. आप उसमें पब्लिक स्पेसिफायर लगाओ नहीं लगाओ, बट वो इम्प्लिसिट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आप लगाओ ना लगाओ, वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा डिफॉल्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस मस्ट बी implemented by their classes, sub classes, okay। So void speak, void, let's say I have just given the speak and default behavior also, as I said to you, I am also telling that from Java 1.8 से हम we can able to write the default method also inside the interface, so default void it system dot out
So default behavior like animal is eating. So this default behavior we don't need to implement in their subclasses. Okay, fine. Void speak. This is the implicit public abstract method. Means if you do not write public, compiler will write. Remember, public. If you do not write abstract, compiler will write abstract. Okay, abstract keyword means method. If it is an abstract method, means method is incomplete. That must be completed with their child classes. Okay. और ये पब्लिक रहता है तो अब ये चाइल्ड क्लासेस की कौन कौन सी हैं, लेट्स सी अभी ये है गाइस जनरल। अभी मैं एक सपोज यहाँ पर एक इंटरफेस बना रहा हूँ, सॉरी एक क्लास बना रहा हूँ जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अभी क्लास के तो बीच में करते हैं इसको। सो लेट्स से मैंने अभी बनाया यहाँ पर ठीक है, क्लास बनाया जो क्लाइंट ने बोला कि भाई अगर आप कोई भी एनिमल बनाना चाहते हो, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू फॉलो, दिस इज द प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो। ओके, तो आपकी जो क्लास है, जितनी भी आप एनिमल बनाओगे वो दोस्त क्लास और दोस्त इंटरफेस यू नो मस्ट बी एक्सटेंड फ्रॉम दिस एनिमल इंटरफेस। तो अभी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन द क्लासेस। अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट है देखो, आप देख सकते हो, क्लास लाइन मस्ट आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो वो ये कह रहा है भाई कि ये जो क्लास है, अगर क्लास वांट टू बी एनिमल, ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब इज ए रिलेशनशिप बना रहे हैं। ओके, लाइक थ्रू द एक्सटेंस कीवर्ड आल्सो इज ए रिलेशनशिप वी आर मेकिंग, थ्रू द इम्प्लीमेंट कीवर्ड आल्सो वी आर मेकिंग द इज ए रिलेशनशिप। बट दोनों में डिफरेंस है, वो हम बताएंगे इसके बाद क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब क्लास और क्लास के बीच की बात होगी तो एक्सटेंस करोगे आप, जब क्लास और इंटरफेस की बात होगी तो इम्प्लीमेंट्स करोगे आप, जब इंटरफेस इंटरफेस की बात होगी तो एक्सटेंस कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है, एंड डिफरेंस मैं बताऊंगा इसके बाद में क्या है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट है, you have to join class author has to follow one contract which is available in the animal class. This is the contract, you can say. This one abstract method has to be implemented. Okay, so okay, so you can see this was the contract. So this join class now has to implement this incomplete method of the animal class. बट एनिमल क्लास के अंदर आप देखोगे ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ रहा है फिर से, बट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। सो एनी दिस लॉइन क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट दिस स्पीक बिहेवियर। okay, so this is the contract line class author has to follow, but this is the default, means they can override also, they can not override। so here you can say इसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर को ऑफ द इंटरफेस और नॉट, ध्यान रखना। okay, but remember this is the default behavior already in the interface, so default method always you can say available in the interface. They are allowing the default method in the interface only. You cannot use the default method inside the class, remember. If you try to use, see, you will get the error. Can you see? Can only be used within the interface. Okay, remember this. Okay, and
यू वांट टू दिस लाइक लाइन क्लास ऑथर के ऊपर है, इट्स अप टू विस it's up to the line class author whether they want to implement this default behavior of the interface or not. So this is the default behavior of animal is, what is the default behavior of animal? Eat. And if line class author want to override this behavior, then overriding की क्या concept है कि method से signature same होगा, और बाई डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिकली होते हैं, बाई डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो आप लिखो ना लिखो बट इंटरफेस के अंदर कुछ भी लिखोगे वो पब्लिक रहेगा, मेथड जितने भी मेथड होंगे, और प्रॉपर्टी जो होगी वेरिएबल होंगे वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे, सारे वेरिएबल जितने भी आप लिखोगे, ठीक है। तो अभी ये पब्लिक है, लेकिन जब मैं ओवरराइट करूंगा तो अभी देखो क्या कह रहा है जी, अभी मैंने पब्लिकली ओवरराइट नहीं किया इसको। ईट इन लॉइन क्लासेस विद ईट इन इतना इतना अटेम्प्टिंग टू असाइन द वीकर एक्सेस स्पेसिफायर, जो पब्लिक था बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक है एनिमल क्लास के एनिमल इंटरफेस के अंदर, लेकिन लॉइन में आप नहीं बना रहे हो तो यहाँ पर क्या डिफॉल्ट उसका जो विजिबिलिटी है वो आप कम कर रहे हैं, यहाँ पर वीकर एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। तो ओवरराइडिंग के केस में या तो सेम रहेगा या फिर स्ट्रॉन्ग एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा। तो सेम वहाँ पर पब्लिक है तो यहाँ पर भी पब्लिक से बढ़ के कोई है नहीं, तो पब्लिकली ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पीक में डालूंगा, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट who is speaking here, okay, so you can say fine, this is, and this is the default behavior of eat. So if line class author they want to, yes, not default, this is not animal line is it, you can say overriding default behavior for the interface. So this is the default behavior. So you can see whether you want to override or not. See, I commented not forcing, okay, for this default behavior. बट अगर आप इसको ओवरराइड नहीं करोगे, लेट्स से मैंने इसको तो ओवरराइड कर लिया, लेकिन अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करूंगा स्पीक मेथड को, तो ये एरर आ जाएगी। देखो आप क्या कह रहा है, देखो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर है जो इंटरफेस के अंदर रखा हुआ है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर है, स्पीक है, ठीक है, वो हमें ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरफेस का यूज हमने मल्टीपल इंस्टेंस में कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। इंटरफेस का यूज हम रेफरेंस वेरिएबल बनाने में भी कर सकते हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मेन क्लास है, ये हो गया एनिमल लॉइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान के चलना, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, लेट्स से यहाँ पर लाइन के अंदर ये देखो आप, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे एनिमल एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना ये इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे आप लिखोगे। ये एक्चुअली ये क्लास की बात हुई क्योंकि ये इस पैकेज में आई थी, एनिमल क्लास है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कौन सी वाली एनिमल की बात कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कौन सा पैकेज, कॉम डॉट इनइट कोड, या मैं एक काम करता हूँ इनको हटा ही देता हूँ। ये हो गया कैट, कैट हो गया
मैं डाल देता हूँ। चलो अब देखो, अब ये मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इम्पोर्ट वाली क्लास। ठीक है, अभी देखो ये इंटरफेस की बात हो रही है। अब देखो क्या कहेगा, एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंसेस, ध्यान रखना। तो इंटरफेस, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस, remember interface does not contain any constructor, interface does not load into the memory, okay, ध्यान रखना। अभी मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी इंटरफेस जस्ट फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस ओनली, ध्यान रखना। तो मैं अभी यहाँ पर न्यू मैं बनाया, जैसे न्यू ये एनोनिमस एनोनिमस इनर एनोनिमस एनोनिमस क्लास के बारे में बता रहा था। ये बोल रहा है हमारा GitHub Copilot है, giving the suggestion that you can create the anonymous inner class, but I'm not going to create that class. I just wanted to tell you about the new line, okay, so I have to import, fine। अब देखो आप, animal dot speak, animal dot eat, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मैंने आई क्रिएटेड द इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, okay, and that reference variable just pointing to their child class object, ठीक है। तो ये लॉइन क्लास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। जब इसने एनिमल क्लास को इम्प्लीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि स्पीक क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, स्पीक मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, करना है, ठीक है। सो लॉइन क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट द स्पीक मेथड ऑफ द एनिमल क्लास which was which is abstract method in the animal class, ठीक है। एंड ये डिफॉल्ट बिहेवियर, इसको इम्प्लीमेंट करो ना करो, बिकॉज एनिमल क्लास के अंदर ये डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, तो देखो आप देख सकते हो। सो इंटरफेस basically we used to create only reference, and that reference to point to their subclasses object, ठीक है, या उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है ये जो क्लास इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन दे रही है, ये ध्यान रखना। उन सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल जो उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन दे रही है, जो क्लासेस उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन दे रही है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, इट्स जस्ट टेकिंग सम टाइम। समथिंग इज रॉन्ग, सो हम बाद में बात करेंगे। देखो अभी आप देखोगे स्पीक, तो ये एनिमल टाइप ऑफ इंटरफेस एंड विच इज होल्डिंग द विच टाइप ऑब्जेक्ट लॉइन, लॉइन क्लास के मेथड को स्पीक देखेगा वो एनिमल के अंदर, तो कोई स्पीक बिकॉज इट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इम्प्लिसिट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो लॉइन के अंदर गया ये। अब ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर को यहाँ ओवरराइड किया लाइन क्लास ने, ओके, कैसे ओवरराइड किया, तो ये लॉइन इज,
ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पर एक ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा क्लास कि मैं वहाँ से एनिमल के रेफरेंस को और वहाँ पे सेट एनिमल और जो भी मैं करूँगा और जिस हिसाब से डिफाइन करूँगा वहाँ से देखो मैं भी आप एक्चुअल यूज बताना चाह रहा हूँ। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, चलो एक पर्सन ही क्लास है मेरे पास, ठीक है। अब पर्सन के पास पर्सन वांट टू यू नो यू कैन से इन्वोक द एनिमल, ठीक है। पर्सन वांट टू इन्वोक द एनिमल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाया मैंने एनिमल। तो कैसे हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, एनिमल हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या करूँगा, यहाँ पर सेटर गेटर मेथड बनाऊंगा, जनरेट सेटर गेटर मेथड किया, ठीक है। पब्लिक सेट एनिमल, पब्लिक गेट एनिमल, और ये एनिमल मैंने इसको नाम दिया एनिमल, ठीक है। अब क्या करेगा पर्सन, देखो कौन से एनिमल को, अब यहाँ पर कई सारे एनिमल है। अब पर्सन को जो भी आप एनिमल का ऑब्जेक्ट डालोगे वो यहाँ पर करेगा गेट एनिमल और उसके करस्पॉन्डिंग उसका आ जाएगा। कैट हो गया, तो ये एक्सटेंड करेगा, इंटरफेस है ई एक्स टी एन, बिकॉज ये इंटरफेस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर आप कोई प्रोजेक्ट में इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू एनिमल, दैट एनिमल मस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द एनिमल इंटरफेस। ये इंटरफेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना। कोई भी एनिमल आपको इंट्रोड्यूस करना है तो इस इंटरफेस से ही इंट्रोड्यूस कराओगे आप। मैंने कैट किया एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर कर दिया। अब इसमें मैं, आप देखोगे एनिमल के अंदर वॉइड स्पीक है, ठीक है, और डिफॉल्ट, लेकिन ये कैट के अंदर देखो, आप ये देखोगे तो ये एक्चुअली इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लास की बात करूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है तो अभी इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास और इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको हटा के आई विल रिफैक्टर change signature, you can say, or I will create the class, just a minute। क्लास क्या करूँगा, create cat, तो इसको मैं हटाता हूँ। मैंने एक एक लॉइन बनाई, एक क्लास कैट बना दिया, ठीक है। अब मुझे फिर इम्प्लीमेंट करना है, क्या है एनिमल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट है, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस अनदर एनिमल कैट। तो ये देखोगे आप क्या कह रहा है कि आइदर भी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एनिमल के अंदर एनिमल इज माय इंटरफेस व्हिच हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ड्यू टू दिस अगर आप इसको हटा दोगे तो कोई इशू ही नहीं है भाई, ध्यान रखना, फिर कोई इशू नहीं देगा, ठीक है। बट ड्यू टू वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो जिस क्लास में इम्प्लीमेंट, जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है, ठीक है। तो अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज if any class want to implement this interface, that class has to implement interface abstract method। तो implement method मैंने किया यहाँ पर, speak it is the default, so no need, default behavior है, ठीक है। speak किया तो यहाँ पर
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन now you can say yeah you can say ये ठीक है। तो ये देख लेना भाई, ये अभी कैट हो गया। अब ये एनिमल है, कैट इज एनिमल, इसे रिलेशनशिप है, ध्यान रखना भाई ये, ठीक है। अब मेरे दो मैंने ये पर्सन क्लास हो गई, तो एक पॉइंट इज एनिमल, कैट इज एनिमल, ओके। और ये जो है डिफॉल्ट बिहेवियर को फोर्स नहीं करता इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस, तो ठीक है। प्रोटोकॉल तो ये वाला प्रोटोकॉल था, दैट हैज टू फॉलो, कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। एंड पर्सन के पास आई एनिमल हो गया, ओके। मुझे क्या करना है यहाँ पर, एनिमल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, इसमें मुझे पास करना होगा, ध्यान रखना। ये कैसे पास करूंगा, मैन से अंदर से आऊंगा मैं, आप देखना ये पर्सन का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, पर्सन, ठीक है, क्लास। अब मुझे क्या चाहिए भाई, पर्सन डॉट, पर्सन डॉट सेट एनिमल किया, एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये इस टाइम ये आप देखोगे, ये जो एनिमल रेफरेंस वेरिएबल हम भेज रहे हैं यहाँ पर, एनिमल what is the, this is the reference variable of type interface, so interface we use only for reference type purpose, we cannot create the object for that interface by using new keyword, ठीक है। it can point to their child class object, जो भी उस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इंटरफेस को, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर सेट एनिमल किया, सेट एनिमल तो कर दिया। अभी आप देखोगे पर्सन के अंदर जब सेट एनिमल आ गया, तो मैं यहाँ पर एक मेथड कॉल कर सकता हूँ, मेथड को कॉल करूंगा, लेट्स से void display yes display animal sound, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया भाई, आप देख सकते हो, इसको पब्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। डिस्प्ले एनिमल साउंड, अगर एनिमल इज नॉट इक्वल टू नल है तो एनिमल डॉट स्पीक करो, और जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट असाइन करोगे उसका स्पीक मेथड कॉल हो जाएगा, अदरवाइज नो एनिमल असाइन, ये मैंने कर दिया, ठीक है। नाउ मैं अगर यहाँ पर सपोज इवन वी डोंट नीड टू, ये कर सकते हो आपने, ये किया, ये किया, ये किया। अब यहाँ पर मैं पर्सन सेट एनिमल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कंट्रोल बी डॉट डिस्प्ले एनिमल साउंड करूंगा, कौन सा होगा एनिमल, देखो अभी लाइन का स्टार्ट, क्योंकि लॉन लाइन टाइप का ऑब्जेक्ट ये पॉइंट कर रहा है, ये आप देख सकते हो। एनिमल रेफरेंस इंटरफेस टाइप रेफरेंस बनाया जो इट्स पॉइंटिंग टू द लाइन टाइप ऑब्जेक्ट, और
पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, सेट एनिमल किया, ये डाल दिया यहाँ पर, और ये आप देखोगे ये लॉइड स्पीक की बात हो रही होगी, डिस्प्ले एनिमल, देखो स्पीक पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे होंगे, तो ये एनिमल विच टाइप, एनिमल इज द टाइप ऑफ रेफरेंस, एनिमल इंटरफेस टाइप रेफरेंस है, लेकिन ये इंटरफेस पॉइंटिंग टू लाइन ऑब्जेक्ट, तो लाइन ऑब्जेक्ट का होगा, लाइन का स्पीक मेथड कॉल होगा, वो किया जाएगा, ठीक है, देखो अभी आने वाला है ये सब, देखो रोडिंग आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मैंने सपोज यहाँ पर किया है, अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पर्सन डॉट सेट किया एनिमल, देखिए अब मैं पर्सन पर्सन डॉट सेट एनिमल, अब इस समय मैं करूँगा न्यू कैट, ठीक है, ये कैट वाली बात हो रही है, पर्सन डिस्प्ले एनिमल साउंड, अभी मैंने कैट किया इस समय, तो अपन क्या कर रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो ये जो पर्सन क्लास है, यू कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन, मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, दिस रेफरेंस वेरिएबल with the help of this interface reference variable, I am able to point to multiple object, I am able to work with the multiple class object, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर पाएगा जो जिस क्लास whose class is implementing this interface, ध्यान रखना, ठीक है, it can point to their it, it can point to only those class object whose class implementing interface, ठीक है, तो अभी आप देखोगे loin class implementing this interface and cat class also implement this interface, अगर आप dog की बात करो, dog class बना दो, अगर वो implement नहीं करेगी तो वही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूजफुल होगा, ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, ये आप देखोगे, रन करता हूँ मैं, तो देखो कैट का अलग साउंड आएगा, ऑनलाइन का अलग, so guys see, okay, so now you can see this is the use of interface, okay, so we are using the interface reference variable, you can see, so this is the, you can say not tight coupling, use coupling we are doing here with the help of interface, so you can see set animal, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ पर we are not creating the animal object by using new keyword, we are just assigning, okay, whichever class object you want to assign you can assign here, but the context है कि वो class should implement this interface, ठीक है, the interface only point to those class object whose class is providing implementation, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर लूज कपलिंग हो रही है बिटवीन द क्लासेस, यू कैन से एन इंटरफेस, सॉरी एडवांटेजेस है लूज कपलिंग भी इंटरफेस के द्वारा हम अचीव करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट तो बना रहा हूँ बट विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, देखो कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, देखो अब आप एनी नंबर ऑफ एनिमल यू कैन इंट्रोड्यूस, अभी सपोज मैं डॉग क्लास भी बना दूँ, लेट्स से मैं भी हटा देता हूँ इसको, डॉग इंटरफेस से मान लो, और I have created another class dog, you can implement any number of, you can create any number of animal with this, with the help of this interface, okay, and you don't need to change the interface code, ध्यान रखना, ठीक है, आप
कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने बना दिया ये डॉग का, ठीक है। You don't need to modify the interface method or interface code to create any new animal class, to introduce any new animal class। ध्यान रखना, क्लाइंट ने तो सिर्फ हमें ये सिग्नेचर दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था। इस ब्लूप्रिंट का हमने अपने अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में। आप देख सकते हो अलग अलग एनिमल क्लासेस के अंदर। और आई एम एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ओके। I am able to create the object for loin class, for line class, for dog class, for cat class। See, अभी मैं दोबारा, मैं देखो जैसे मैंने अभी कौन सी डॉग इंट्रोड्यूस कराई ना, तो अभी देखो मैं पर्सन डॉट सेट एनिमल, अब यहाँ पर न्यू डॉग कर दोगे आप, ये देखो आप, ये आपने, तो अभी क्या हुआ, न्यू डॉग किया आपने, डिस्प्ले एनिमल साउंड आ गया। अब ये डॉग के लिए करेगा, देखो क्या कह रहा है इसमें डॉग का, देखो डॉग इज ईटिंग बार्किंग। सी, मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी। और पर्सन क्लास में मैंने देखो एनिमल का, ये मैंने एक क्लास बना दी, बस इसी में ये ब्लूप्रिंट, मतलब ये ब्लूप्रिंट हो गया। और ये क्लास मैंने बता दी, यहाँ पर इंटरफेस का रेफरेंस को जस्ट रेफर कर रहा हूँ और इस इंटरफेस के द्वारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ। दिस द एडवांटेज ऑफ इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लूज कपलिंग का भी केस हमने देख लिया, इस क्लास में लूज कपलिंग हो रही है, देखो आप कहीं भी हमने एनिमल का ऑब्जेक्ट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, यू कैन से आप जो भी एनिमल का ऑब्जेक्ट पास करोगे उसको रेफर करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का डॉग का किया, डॉग का स्पीक मेथड, इफ दिस रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू द कैट ऑब्जेक्ट, तो कैट स्पीक मेथड जो भी आप पास करोगे, ठीक है। ये हो रहा है। अब गाइस क्या था इसमें हमारी में, diamond problem। Now you can easily understand the diamond problem, I will tell you, because you have understood the interface concept। So I think after this I should, now I'm breaking, see, three animal object, can you see, one, two and three। So guys, I should stop this session because it's almost 48 minutes, okay। So in the another session guys, in the next session I will be covering the this diamond problem issue and how we can have to resolve, and difference between extents and implements, okay। So thank you guys, thank you so much। So in the next session I will be covering